Welcome again, my dear students. Today we'll talk about part second of degree of unsaturation or double bond equivalence, in which we are trying to find the number of structural isomers in a molecule. So in previous video we talked about the basics of DU and DBE, and we also gave you the formula. The formula was how to find DBE is DU or DBE double bond equivalent is equal to C minus H by 2 plus N by 2 plus 1. This was the expression or formula from which you can obtain double bond equivalence or degree of unsaturation for molecules. C is the number of carbon atoms in molecule, H is the number of hydrogen atoms, N is the number of nitrogen atoms, and I told you that this is the equation which is applicable to all compounds, whether that are hydrocarbons or oxygen containing. So hydrocarbons or oxygen containing hydrocarbons, or we can say sulfur containing hydrocarbons, or we can say nitrogen containing hydrocarbons. It is applicable to all these systems, and since in formula there is no carbon, since there is no oxygen at all, there is no sulfur at all, so you don't have to count oxygens, you don't have to count sulfur atoms there. But if there are halogen atoms for X hydrocarbons, means that hydrocarbons containing halogens, X is counted as H. मतलब ये कि आपका जो हेलोजन है उसको आपको मान लेना है दैट इज हाइड्रोजन. सो जैसे आप हाइड्रोजन काउंट करते हैं वैसे भी आप एक्स को मान लेंगे हाइड्रोजन, तो उसको भी काउंट कर लेंगे इस एक्सप्रेशन में. ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ये दो चीजें विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन फाइंडिंग DU or DEE for compounds. Once you find DU or DEE, then you can find the number of structural isomers easily, also the properties of those compounds. How this is true, let's have an example. So हमारे पास example number 1 है. Suppose हमारे पास है C2H6O. आपका ये फॉर्मूला है. आपको बोला जाता है कि बताइए इस मॉलिक्यूल में कितने आइसोमर्स है. So how many isomers are there? How many structural isomers are possible in this? तो कैसे करेंगे आप DU निकालेंगे. So for this particular case, DU or DBE double bond equivalent is equal to number of carbon 2 है minus number of hydrogen 6 है. ऑक्सीजन आपको काउंट करना ही नहीं है, तो इट्स देयर. सो 6 डिवाइड बाई 2 प्लस नाइट्रोजन है ही नहीं, तो फार्मूला के 1. सो कार्बन के बदले आपने लिखा, हाइड्रोजन के बदले आपने लिखा, नाइट्रोजन है ही नहीं, प्लस 1 किया, तो यू आर गेटिंग इक्वल टू that is 2 minus 3 plus 1, that is equal to 0. Since it's equal to 0, it indicates that there is no double bond at all. So 0 का मतलब ये है that there is no double bond or ring. There is no double bond or ring means that all bonds are single. All bonds जो है वो single bonds इसमें available है, मौजूद है. तो सिंस इसमें ऑक्सीजन है तो सिंगल बॉन्ड है. सिंगल बॉन्ड का मतलब यह है कि जब आपके पास सिंगल बॉन्ड होगा तो इसमें या तो फंक्शनल ग्रुप होगा OH या तो ईथर होगा, बिकॉज ईथर में सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, अल्कोहलिक ग्रुप में क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड्स. हैड देयर बीन डबल बॉन्ड, अगर उसमें कोई डबल बॉन्ड होता तब कार्बोनिल ग्रुप का जो टेंडेंसी है आने का वो रहता. दिस इज इंपॉर्टेंट. अगर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 0 आता है, इसका मतलब यही हुआ आपके जो बॉन्ड्स इस मॉलिक्यूल में है वो सारे सिंगल है, इंडिकेटिंग दैट उसमें जो O है दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ईदर अल्कोहल्स और दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ईथर्स. ये चीज आपको ध्यान में रखना है. सो देयर इज नो रिंग एट ऑल. व्हाई? बिकॉज देयर इज नो डबल बॉन्ड. सो हाउ वी कैन मेक इट. 2 ही कार्बन्स हैं तो एक ऐसे मॉलिक्यूल बनेगा. सो C सिंगल बॉन्ड C, उसके बाद OH डाल दो, कर लो वैलेंसी बराबर H3H2. देखिए कार्बन 2 हाइड्रोजन 2 प्लस 3 हो गई 5 और 1 हो गई 6. सो H6 और O यहाँ पे है. सो दिस इज इथेनॉल, एक मॉलिक्यूल बन गया. दूसरा क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3. 3 हो गए 6, हाइड्रोजन कार्बन 2 ऑक्सीजन 1 ईथर है. सो दीज आर फंक्शनल
आइसोमर्स। सो दो आइसोमर्स जो है इस मॉलिक्यूल में अवेलेबल है। सो देयर आर ओनली 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल इन दिस मॉलिक्यूल। दीज आर दिस नंबर 1 इज इथेनॉल, नंबर 2 इज methoxymethane, that is the ether. These are functional isomers. इस तरीके से जो है आप निकाल सकते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इन अ मॉलिक्यूल बाय कैलकुलेटिंग डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस. I hope you understand it. And moreover, you can find the properties also. Since we have not talked about the properties of these compounds, तो आप नहीं बता सकते, लेकिन जब हम इनके प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स एक्सेट्रा, सबके प्रॉपर्टीज जब हम पढ़ेंगे तब आप प्रॉपर्टीज का भी कंपैरिजन कर सकते हैं. सो इस मॉलिक्यूल में अगर ये अल्कोहल होगा तो इट गिव्स लुकास टेस्ट. अगर इट्स नॉट एक्सप्लोसिव, इट्स इंटॉक्सिकेटिंग. अगर आप इसको देखेंगे, इट इज़ बेसिकली एनेस्थेटिक एजेंट है ये, एनेस्थेटिक एजेंट. तो ये चीज़ें जो है इसमें आप लिख सकते हैं. दूसरे एग्जाम्पल हम यहां पे लिखेंगे. सो द सेकेंड एग्जाम्पल इज C3H6O. ये दूसरे एग्जाम्पल हमारे पास है. तो आप निकालेंगे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट्स और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन. दैट इज इक्वल टू कार्बन 3 है माइनस हाइड्रोजन 6 है बाई 2. नाइट्रोजन है ही नहीं, फॉर्मूला का 1 है. दैट इज इक्वल टू 3 - 3 + 1, दैट इज इक्वल टू 1. जब 1 आया इसका मतलब ये हुआ देयर इज 1 डबल बॉन्ड और 1 रिंग. या तो उसमें एक रिंग होगा या एक डबल बॉन्ड होगा. तो सिंस देयर इज अ डबल बॉन्ड नाउ, सिंस देयर इज अ डबल बॉन्ड, तो ये O जो है इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनिल. सो दिस O नाउ कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ईदर कार्बोनिल, इट कैन बी अल्कोहल ऑल्सो, इट कैन बी ईथर ऑल्सो. आपको ईथर और अल्कोहल नेग्लेक्ट नहीं करना है, ये भी हो सकता है क्योंकि आप C डबल बॉन्ड C भी लिख सकते हैं. सो व्हेन यू कैन मेक C डबल बॉन्ड C, तब O का डबल बॉन्ड नहीं आएगा. तब वो किस हालत में होगा, या तो अल्कोहल हालत में या फिर ईथर हालत में. सो देयर कैन बी C डबल बॉन्ड C. सिंस देयर इज ओनली 1 डबल बॉन्ड, सो आप C डबल बॉन्ड से अगर लिखेंगे तो C डबल बॉन्ड O आप नहीं लिख सकते हैं. तब ये सिंगल बॉन्ड ही रहेगा O, तो ये अल्कोहल शेप में होगा या ईथर शेप में होगा. सो दीज आर द पॉसिबिलिटीज. अब कौन कौन से आइसोमर्स बन सकते हैं स्ट्रक्चरल कैटेगरी में, तो वो हम लिखेंगे यहां. पहले क्या करना है, पहले आप सिट्रेशन वाले बनाइए और बाद में हम रिंग वाले बनाएंगे. पहले सिट्रेशन 3 कार्बन हैं, सो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन. लेट्स कीप हियर डबल बॉन्ड. तो यहां हम OH डालेंगे. बताइए क्या बनेगा फॉर्मूला. ये बनेगा CH2, ये बनेगा यहां H, यहां बनेगा यहां CH2. कितने कार्बन हैं देखिए, कार्बन 3, हाइड्रोजन 2 3 4 5 6 और ऑक्सीजन 1. दिस इज 1. नेक्स्ट इज, अब इस OH को इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट हियर on the carbon number 1, we place this on carbon number 2. Keep the double bond at the same position. So it is CH2 double bond CH. यहाँ पे OH डालेंगे कार्बन नंबर 2 पे, तो सिंगल बॉन्ड CH3 आएगा. ये इसका नाम क्या आएगा, 1 2 3, दैट इज प्रोप 2 in 1 all. अगर इसका नाम देखेंगे 1 2 3, इट्स प्रोप 1 in 2 all. इस तरीके से कंपाउंड्स बन सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है, अब हम डे डबल बॉन्ड जो है वो यहां पे लाएंगे. सो इट इज CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH. अगर ये OH आप फिर से बीच में डालेंगे तो वो ही कंपाउंड बनेगा जो नेक्स्ट वाला कंपाउंड था. आई होप यू अंडरस्टैंड इट. नेक्स्ट, ये तो अल्कोहल मैंने डाल दिया, अब हम ईथर की बात करेंगे. सो ईथर कैसे डालेंगे आप, CH2 डबल बॉन्ड C, तीसरे कार्बन पे बीच में O डालेंगे और यहां पे CH3 करेंगे, तो ये यहाँ पे H आएगा. 2 हाइड्रोजन 3 4 5 6 बराबर 6 है और ईथर आएगा. ठीक. और ये तो ये स्ट्रक्चर स्ट्रेट चेन बन गए. अब आपका जो स्ट्रक्चर है वो रिंग वाला कैसे बनेगा. 3 कार्बन का रिंग हमारे पास होता है, दैट इज दिस. तो डबल बॉन्ड आएगा ही नहीं, या तो आपको डबल बॉन्ड बनाना है या तो रिंग बनाना है, तो ऑब्वियसली जो है वो OH यहां पे आएगा. आप कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ कार्बन, 1 2 3 कार्बन. हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, हो गए 4 4 1 हो गए 5 और यहाँ पे 1 है, बिकॉज इसकी वैलेंसी कितनी है, 1 2 3 वैलेंसी कार्बन की, 1 पेंडिंग है, उसके बदले हाइड्रोजन होता है, यहाँ हो गए 6 हाइड्रोजन बराबर. सो ये जो साइक्लिक सिस्टम बन सकता है. नेक्स्ट हमारे पास है, आप यहाँ पे 2 ही कार्बन बनाओ, एक कार्बन अलग डाल दो, ऑक्सीजन बनेगा, इपॉक्साइड बनेगा. तो ये जो है
नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास बन के आ रही है। ठीक, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऐसे भी बना सकते हैं रिंग वाले स्ट्रक्चर, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन और ऑक्सीजन, एक, दो, दो, चार, दो, 6 हाइड्रोजन्स, ऐसे भी करके आएंगे। अब ये अल्कोहल भी मैंने बनाया, ईथर में भी बनाया, देन यू हैव cyclic structures also now, but since there's a one double bond there are chance of carbonyl also, so we can make carbonyl structures also। आप देख सकते हैं यहाँ carbonyl structures, C सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, OH कर दो अल्डेहाइड। जब आपने यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया तो यहाँ पे आप नहीं लगा सकते हैं बिकॉज एक ही डबल बॉन्ड है, तो इट इज CH3 हियर, इट इज H हियर। कितने कार्बन्स हैं, 3 कार्बन्स। हाइड्रोजन कितने हैं, 3, 2, 5, 1, 6 और ऑक्सीजन 1। This is propanol. Similarly, instead of making aldehyde, you can make ketone also. So CH3 single bonds बीच में डाल दो because ketones are always in the middle. Aldehydes are always at the terminal. So 3 कार्बन्स, 6 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन। So एसीटोन भी बनेगा, प्रोपेनॉल भी बनेगा और we can say प्रोप-2-ऊन भी बनेगा। ये सारे कंपाउंड्स जो है स्ट्रक्चरल कैटेगरी में वो बन सकते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। आई होप यू अंडरस्टैंड इट, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। सो ये सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर जो हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आइसोमर जो है इसके बन सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन जो है IIT JEE में या नीट में आ सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेंगे, थोड़ी सी बिगर एग्जाम्पल, इससे भी ज़्यादा। सपोज हमारे पास है C4H8O, तो इसमें आप DU निकालेंगे पहले। सो DU और डबल बॉन्ड इक्वलेंट्स किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ कार्बन 4 है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 8 है, डिवाइड बाई 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 4 - 4 + 1 दैट इज इक्वल टू 1। एक मतलब एक डबल बॉन्ड है, देयर इज 1 डबल बॉन्ड और 1 रिंग, या एक डबल बॉन्ड या एक रिंग होगा। अब कैसे आप बना सकते हैं इनको, देखिए डबल बॉन्ड जब है ऑप्शन 1 है तो इसका मतलब ये हुआ दिस कैन बी इन द कार्बोनिल फॉर्म, दिस कैन बी इन अल्कोहलिक फॉर्म, दिस कैन बी इन ईथर फॉर्म, दिस कैन बी हियर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये सारी हो सकती हैं। अब कैसे बनाएंगे आप, 4 कार्बन है तो डाल दो एक एक करके। सो 1, 2, 3, 4 कार्बन, पहले नंबर पे आप डबल बॉन्ड डाल दो, यहाँ पे OH कर दो। ठीक, तो जो है वैलेंस आप सेटिस्फाई कर सकते हैं बाकी हाइड्रोजन में, वो बराबर आएगा, आप चेक कर लो। अब हम ये डबल बॉन्ड एक ही जगह रखेंगे, अब इस OH को कार्बन नंबर 2 पे डालेंगे, वैलेंस से सेटिस्फाई कर सकते हैं। ठीक, अब जो है इस OH को कार्बन नंबर 1 पे था, अब 2 पे, अब 3 पे कर दो। ऐसे कर दो, ये सिंगल बॉन्ड अटैच है, ये डबल सेकंड कार्बन पे अटैच है, ये थर्ड कार्बन कंटेनिंग डबल बॉन्ड। अगर यहां से आएंगे 1, 2, 3, 4 करेंगे तो डबल बॉन्डेड कार्बन पे जो है OH अटैच है यहां पे। नेक्स्ट, अब इथर्स बन सकते हैं। इथर्स कैसे बनेंगे, 1 मोर एग्जांपल इज देयर। अब यहां पे चौथे कार्बन पर डालो, सो यहां पे डाल दो। ठीक, अब नेक्स्ट हमारे पास है ईथर, यहां आप डबल बॉन्ड चेंज कर सकते हैं, आप डबल बॉन्ड भी चेंज कर सकते हैं। कार्बन नंबर 1 पे आपने डबल बॉन्ड रख दिया, बीच में डाल दो ऐसे। ठीक, अब सेकंड पे डाल दो। अगर आप थर्ड पे डालेंगे वो यही मॉलिक्यूल बनेगा, लास्ट पे डालेंगे वो भी यही मॉलिक्यूल बनेगा, ऊपर वाला ही, तो ये 2 बनेंगे ऐसे। नेक्स्ट हमारे पास क्या बनेगा, अब ईथर की बात करेंगे हम, ये वाला तीसरा कार्बन, फिर O, फिर चौथा कार्बन। अब ये O बीच में डाल दो तो C डबल बॉन्ड CO, फिर 2 कार्बन बाहर से आएंगे। ठीक, ये जो है ये ईथर्स आपके बन सकते हैं। दीज आर द मॉलिक्यूल्स विच बिकम कंपाउंड्स फॉर यू। अब अगर बीच में आपने डाल दिया, बीच में डबल बॉन्ड, तो भी ईथर बनेगा। कैसे बनेगा, आप देख सकते हैं, यहां आपके पास है यहां कार्बन, बीच में डबल बॉन्ड डाल दिया तो यहां पे O बनेगा और यहां पे C बनेगा। इनमें से, इन ईथर्स में से लास्ट फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड था, अब बीच में डबल बॉन्ड है तो ईथर ये बन गया। ठीक, अगर आप O यहां से करेंगे वो सेम मॉलिक्यूल बनेगा, तो ये एक और एक ईथर बन सकता है। अब हमारे पास कार्बोनिल की बात करेंगे, कार्बोनिल की OH भी आया, ईथर भी आया। अब कार्बन की बात करेंगे, 1, 2, 3, 4 कार्बन पे OH डाल दो, बाकी कर सकते हैं। अब इसको बीच में ला दो कीटोन शेप में,
तो ये भी बन सकता है। अगर आप इसको यहाँ कर देंगे तो सेम मॉलिक्यूल बनेगा, तो ये दो इसमें बन सकते हैं, अल्डिहाइड एंड कीटोन। नेक्स्ट हमारे पास है रिंग स्ट्रक्चर्स। ये भी आ गया डबल बॉन्ड पहले ही, और आपके ये भी आ गया। अब रिंग स्ट्रक्चर्स कैसे बनेंगे, आपको 4 कार्बन का रिंग ऐसे बनेगा। यहां से OH डाल दो, जरा देखेंगे हम 4 कार्बन, फाइन 4 कार्बन। इसके हाइड्रोजन कितने हैं, 2 2 4 2 6 1 7 1 8 बराबर, ये बनेगा। नेक्स्ट ये भी बन सकता है 3 कार्बन, एक कार्बन को इसको यहाँ पे अल्कोहल कर दो, 3 कार्बन, एक कार्बन को यहाँ ईथर कर दो, ठीक। अब 3 कार्बन बीच में डाल दो, यहाँ पे मिथाइल, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, और ये O और एक। अब इस ऐसे भी कर सकते हैं आप, इंस्टेड ऑफ कीपिंग मिथाइल ग्रुप नेक्स्ट टू ऑक्सीजन, कीप इट अवे फ्रॉम द ऑक्सीजन, ऐसे भी कर सकते हैं। ये जो सारे आइसोमर्स जो है वो बन सकते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16 आइसोमर्स जो है इसके बन गए, 16 आइसोमर्स। इसके अलावा भी आप चेक कर सकते हैं, कुछ मत और बन सकते हैं। मेरे ख्याल से जो है इतने सारे आइसोमर्स बन सकते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। अगर आपके दो ऑक्सीजन यहाँ पे होंगे तो एस्टर बनने के चांसेस हैं। मैं होम असाइनमेंट आपके लिए रखता हूँ, इस मॉलिक्यूल को आप चेक कीजिए घर में, यू चेक इट बाय योर सेल्फ। C3H6O2, इसमें 2 ऑक्सीजन हैं, DU किसके बराबर आएगा, 3 कार्बन -6/2 + 1 दैट इज 3 - 3 + 1 दैट इज इक्वल टू 1। जब 1 आया मतलब ये कि 1 डबल बॉन्ड और 1 रिंग। अब डबल बॉन्ड 1 है लेकिन ऑक्सीजन 2 है, इसका मतलब ये कार्बोनिल की हालत में होगा। अगर कार्बोनिल की हालत में होगा तो दूसरा जरूरी होगा ऑक्सीजन, अल्कोहल की हालत में या ईथर की हालत में, ठीक। ये एक। नेक्स्ट इज एसिड की हालत में हो सकता है, एस्टर की हालत में हो सकता है, ठीक। और हमारे पास रिंग C+C भी आ सकता है, रिंग स्ट्रक्चर। अगर C+C होगा इसका मतलब बाकी जो होंगे OH हालत में या 2 OH हालत में या ईथर हालत में, रिंग फॉर्म में, ये सारे चांसेस जो है इसमें बनेंगे। क्यों, क्योंकि अगर आपने डबल बॉन्ड कार्बोनिल में लगा दिया तो इसने कंज्यूम किया एक ही ऑक्सीजन, अब दूसरा ऑक्सीजन कहां जाएगा, वो या तो अल्कोहल बनेगा या तो ईथर बनेगा। 2 कार्बोनिल नहीं आ सकते, क्योंकि अगर 2 कार्बोनिल आपके पास है इसका मतलब यह हुआ कि आपने 2 डबल बॉन्ड डाल दिए लेकिन डबल बॉन्ड एक ही है। तो एक डबल बॉन्ड आपने कंज्यूम कर दिए कार्बोनिल के साथ, अब दूसरा O जो है उसके लिए आप बना सकते हैं OH या ईथर। सिमिलरली अगर आपके पास एसिड बन सकता है, 2 ऑक्सीजन कंप्लीट आए यहाँ, एस्टर भी बन सकते हैं, 2 ऑक्सीजन आ गए यहाँ। अगर हमने C+C डाल दिया इसका मतलब ये कि दूसरा कार्बोनिल बिल्कुल भी नहीं होगा, अलबत्ता क्या होगा, या 2 OH ग्रुप होंगे या ईथर ग्रुप एक होगा, एक अल्कोहलिक ग्रुप होगा, एंड रिंग फॉर्मस होंगे। इसको आप चेक कीजिएगा एट होम, दिस इज होमवर्क फॉर यू। अब नेक्स्ट मॉलिक्यूल हम लेंगे नाइट्रोजन कंटेनिंग में से। हमारे पास नाइट्रोजन कंटेनिंग सिस्टम में आता है ये मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल C3H7N। DU निकालो, DU और डबल बॉन्ड इक्वलेंट्स किसके बराबर आएगा, दैट इज इक्वल टू कार्बन माइनस हाइड्रोजन दैट इज 7/2 प्लस 1/2 बिकॉज नाइट्रोजन एक है प्लस 1, तो ये आएगा बराबर, एलसीएम निकालो 2 तो ये बनेगा 6 - 7 + 1 + 2, then this will be equal to 6 + 2 is 8 + 1 is 9, 9 - 7/2 is equal to 2/2 is equal to 1। 1 का मतलब यह है कि इसमें एक डबल बॉन्ड होगा, 1 डबल बॉन्ड और 1 रिंग होगा, ठीक। अब कौन से मॉलिक्यूल्स में बन सकते हैं, लेट्स हैव अ लुक। अब हमेशा याद रखना चाहिए कि जब आपके पास N होगा तो N किस हालत में होगा, या तो N सिंगल बॉन्ड हालत में होगा NH2 अमाइन करके, या तो इमाइन करके, डबल बॉन्ड NH आएगा इमाइन करके। डबल बॉन्ड NH इज कॉल्ड इमाइन, सिंगल बॉन्ड NH2 इज कॉल्ड अमाइन। इन हालत में अवेलेबल होगा ये मॉलिक्यूल। अब देखिए कार्बन 3 है तो हम कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बनाएगा,
सो वी हैव मेक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसका मतलब ये हुआ कि N विल बी इन द स्टेट ऑफ NH2, तो यहां पे NH2 डाल दो, क्योंकि डबल बॉन्ड एक ही होना चाहिए, वो आपने कंज्यूम कर लिया, तो यू राइट हियर NH2। तो बाकी आप बैलेंस सेटिस्फाई कर सकते हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। देखिए 2 + 1 हो गए 3, 3 2 5, 5 2 7, बिल्कुल करेक्ट। 3 कार्बन, नाइट्रोजन 1, नाइट्रोजन 1। ठीक, अब डबल बॉन्ड जो है अपनी जगह रखो, NH2 ग्रुप जो है फंक्शनल ग्रुप, कार्बन नंबर 1 से हटाओ, सेकंड पे डाल दो, तो ये बनेगा ऐसे। NH2, तो यहां पे ये जो है ये H जो है नहीं आएगा। अब NH2 फ्रॉम 1 कार्बन टू 2 कार्बन, थर्ड कार्बन पे डाल सकते हैं आप, तो ऐसे बनेगा। देन देयर इज CH सिंगल बॉन्ड CH3, ऐसे बनेगा। तो NH2 कार्बन नंबर 1 पे था, फिर 2 पे डाल दिया कंटेनिंग डबल बॉन्ड, फिर टर्मिनल पे डाल दिया कंटेनिंग डबल बॉन्ड, ये 3 बन सकते हैं। अब अगर आप बना सकते हैं इमाइन भी बन सकता है, तो आपको कार्बन को सिंगल रखना है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन सिंगल, फिर डबल बॉन्ड NH करना है, तो बैलेंस सेट्स पे करिए, CH3 CH2, इसका H आएगा, देखिए 3 2 5 6 7, बिल्कुल करेक्ट। ये मॉलिक्यूल्स जो है इसमें बन सकते हैं। अब आप इसको कार्बन नंबर 2 पे भी डाल सकते हैं, यू कैन पुट इट ऑन कार्बन नंबर 2, या मिथाइल को ही हटाइए, ऐसे करिए आप, 1 2 कार्बन 3 कार्बन, डबल बॉन्ड NH, ऐसे भी कर सकते हैं आप। ये स्ट्रेट चेन थी, ये ऐसे NH यहाँ पे कार्बन 1 पे था, NH यहाँ पे कार्बन नंबर 2 पे है, 1 2 3 इमाइन, ये 2 आइसोमर्स बन सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हम रिंग स्ट्रक्चर्स भी बना सकते हैं। इसमें रिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, एक बनेगा यहाँ, दैट इज आपका जो है ये बनेगा 3 कार्बन ऐसे साइक्लोप्रोपेन के हिसाब में, और ऊपर डाल दो NH2 ग्रुप, दैट इज इट। सो इट्स साइक्लोप्रोपेन अमाइन, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 आइसोमर्स बन सकते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। सो इस तरीके से जो है आपको सीखना पड़ेगा, आपको थिंक करना पड़ेगा कि हाउ कैन वी मेक नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स फ्रॉम डबल बॉन्ड इक्वलेंट्स और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कॉन्सेप्ट। So these were some of the examples, and I gave you one homework. Please do that. And I must tell you one important thing, that if you like my videos, please do not hesitate to subscribe my channel, and take good care of yourselves. I'll come up with more good videos, hopefully. पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए. Thank you very much.